Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in proper manner. So myself Anil Digari, PGT Mathematics from DPS Ramachur. So today I am going to discuss about differential equation. This is a very important topic from 12th mathematics and this chapter contains 4 marks in board examination. Always there is one question arises from this particular topic, which is differential equation. As earlier you have been familiar with what is an equation. So basically what is an equation? An equation involving dependent variable which is y and independent variable which is x, and there will be some constant. Okay, then this formation, this algebraic equation, when we put it equal to 0, then this is called an equation. So today we are going to discuss about differential equation. So these are the topics which we have go through in this particular topic, this particular chapter. So topics to be covered. The very first topic is meaning of differential equation and its order. What is the order? If there is any kind of equation, then it must contain order as well as degree. ठीक है, पहली क्लास में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, बेसिक में जब भी हम इक्वेशन की बात करते थे इसकी डिग्री की बात करते थे, बट स्टेप यहाँ पे ऑर्डर की बात इसलिए हो रही है बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंपल इक्वेशन, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एनी इक्वेशन व्हिच कंटेन डेरिवेटिव देन मस्ट कंटेन द डेरिवेटिव. ओके, इट मस्ट कंटेन द ऑर्डर. So the topics to be covered are meaning of differential equation, its order and degree. The second thing is general and particular solution of differential equation. उसके जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन हैज बीन गिवन. अगर किसी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन है तो कैसे हम उसको फॉर्मुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में. ठीक है, एंड द लास्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के 3 मेथड्स दिए गए हैं. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट मेथड इज वेरिएबल सेपरेशन मेथड. इन दिस मेथड वी जस्ट separate the variables. I mean to say we separate x as well as y. Second is homogeneous equation, an equation containing x and y in same degree. x और y की सेम डिग्री अगर आपको दिखाई दे किसी इक्वेशन में तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन. इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड आपके सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0. ठीक है, नेक्स्ट LDE, इट मींस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy by dx plus dy is equal to q. ये वाला टाइप हमें पढ़ना है. एंड जो सेकंड टाइप है इसका dx upon dy plus dx is equal to q, it has been reduced from your syllabus by CBSE due to this pandemic. Okay, so let's start the video. First you can take the screenshot of this what we have to learn. So let's start the video beta. So very first thing is what is a differential equation? What is a differential equation? So basically you have learned about the equation like x plus 2y equal to 0, x plus 3 is equal to 0. This is equation in two variables. This is an equation in one variable. Okay, and both are linear equation since its degree, दोनों इक्वेशन की डिग्री कैसी है 1 है, दोनों के पावर ऐसे 1 है. So both are linear equation in 1 degree and the very first equation is linear equation in 2 variables and the second is linear equation in 1 variable. But I am talking about differential equation. So basically what is differential equation? An equation involving dy by dx. That is dy by dx का मतलब क्या है? Rate of change of y. It means dependent variables with respect to independent variable
So an equation involving dy by dx. What is dy by dx? It is the rate of change of dependent variable with respect to independent variable. So an equation involving dy by dx and its higher order derivative is known as differential equation. Differential equation. Okay. So basically, what is differential equation? An equation involving dy by dx. Dy by dx means the derivative of y with respect to x. That is the derivative of dependent variable with respect to independent variable is known as differential equation. So, for example, dy by dx plus y equal to 0, or we can say dy by dx plus 2y plus 3 equal to 0. So equation like that, an equation like dy by dx containing dy by dx and x, y, which are variables, dependent and independent variables, are known as a differential equation. Now we need to find what is the order and degree of any differential equation. So what is an order and degree of differential equation? So any equation which contain variables have some order and degree. So the order and degree of a differential equation. Basically, what is order? Order is the term. So dear student, the order of any differential equation is the highest order derivative which is present in the differential equation has the order of the differential equation. Suppose take differential equation as suppose d2y upon dx square plus 3 times dy by dx plus y equal to 0. Suppose this is a differential equation. तो आपने क्या करना है, इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा वही आपका क्या वही डिसाइड करेगा आपका व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ये जो है ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है इस इक्वेशन में. सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ट्रू. ठीक है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है. फिर एक और एग्जांपल अगर हम देख सपोज d3y अपॉन dx क्यूब प्लस ट्वाइस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy by dx plus y is equal to 0. Suppose this is a differential equation. Okay, suppose this is a differential equation. So what is the order of this differential equation? So for order we see the highest order derivative present in the differential equation. तो इस differential equation में अगर आप देखेंगे तो highest order derivative क्या है, d3y upon dx cube. This is the highest order derivative which present in this differential equation. So what is the order of this differential equation? The order of this differential equation will be 3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है सिंस, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन? द ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हिच प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वहां प्रेजेंट होगा वही क्या हो जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा. अगर 2 पावर वाला है तो 2 वाला जाएगा. थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा. और अगर मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है y डिवाइड बाय dx plus x is equal to 0. Suppose this is a differential equation. Okay, having x and y as variables, x is independent, y is dependent variable, and dy by dx is the rate of change of y with respect to x. तो अगर इस काइंड का मुझे दिया है तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें तो देयर इज ओनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हियर. सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ओके, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1. It is clear. Now what is the degree of differential equation? Okay, so degree of differential equation कैसे हम फाइंड करेंगे? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में है उसकी जो डिग्री होगी वही आपकी उस इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी. ओके, बट देयर इज वन कंडीशन. द कंडीशन इज दैट इक्वेशन मस्ट बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म हो वो कैसा हो, एक पॉलिनोमियल फॉर्म हो और इक्वेशन किस टर्म में हो, इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y
इसका मतलब ये हो गया डिग्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है, वो कैसी हो, वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो इन टर्म्स ऑफ द डेरिवेटिव, ठीक है, जो डेरिवेटिव आपको दिए हुए हैं उनके टर्म्स में वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए और उसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। सपोज अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर 2, अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आप देखेंगे कि उसकी डिग्री कितनी है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री चूंकि 1 है तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। रही बात इसकी, तो यहाँ पे भी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में विच इज d3y/dx3, उसका ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है उसकी डिग्री आप देखिए कि डिग्री कितनी है, जो उसकी डिग्री होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री बन जाएगी। तो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 3 है बट डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और एग्जांपल्स ले सकते हैं, सपोज d2y/dx², ठीक है, प्लस 2 टाइम dy/dx होल क्यूब प्लस y is equal to 0. Suppose this is an differential equation student. So what is the order and degree of this differential equation? So for order, we just have a look on what is the highest order derivative present in this differential equation. तो highest order derivative कौन सा present है यहाँ पे, d2y/dx²। तो order इसका 2 हो जाएगा। order क्या हो जाएगा इसका, order will be 2. Now what is degree? डिग्री की अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर यानी डिग्री बन जाएगी। ओके, सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यहाँ पे डिग्री है 2, तो 2 विल बी द ऑर्डर डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अभी आप यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि dy/dx की पावर 3 है, ठीक है, dy/dx की पावर कितनी है, 3 है, जो कि इससे ज्यादा है, बट मैंने फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को, फॉर डिग्री we go through the highest order derivative, for order we go through the higher order derivative. So डिग्री और ऑर्डर दोनों के लिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको हम देखेंगे, जो उसकी डिग्री होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी, जो उसका ऑर्डर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 2 और सिंस इसकी डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट। Now, let us take some example to understand how to find the order and degree of any differential equation. तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेटा इसके लिए, ठीक है। Suppose there are some examples. Example number 1, d3y/dx³ plus twice dy/dx whole square minus dy/dx plus y equal to 0. Example number 2 is dy/dx whole square plus dy/dx minus sin square y equal to 0. And the next example is dy/dx plus sin dy/dx equal to 0. You can take one more example. Suppose d2y/dx² whole square plus twice dy/dx whole cube plus e to the power dy/dx equal to 0. तो बेटा इन इक्वेशंस को ध्यान से अगर देखें, ठीक है, तो जो पहली इक्वेशन है ये dy/dx में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या है, dy/dx में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सो इसका जो ऑर्डर होगा, फॉर ऑर्डर वी यूज द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। सो डिग्री ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना हो जाएगा, 3, एंड डिग्री क्या होगी बेटा, डिग्री हो जाएगी 1, बिकॉज जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री बन जाएगी। नाउ द सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है यहाँ पे dy/dx, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, और डिग्री की जहां तक बात है तो dy/dx की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी बेटा, डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3,
dy by dx plus sin dy by dx, मैंने कहा था for order and degree we must see that the derivative, the differential equation should be a polynomial in terms of dy by dx, तो उसे पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब यहां अगर आप देखें तो dy by dx प्लस sin dy by dx, तो ऑर्डर तो इसका ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर इसका हो जाएगा 1, ठीक है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसमें, dy by dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है तो ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। बट फॉर डिग्री हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंस वी कैन नॉट फाइंड द डिग्री, क्यों, बिकॉज दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। व्हाई, बिकॉज साइन के एंगल में dy by dx दे दिया गया है विच वी कैन नॉट डिवाइडेड, हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, तो हेंस डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री कांट डिफाइन, ठीक है। डिग्री क्यों नहीं डिफाइन कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव dy by dx, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। इस इक्वेशन को देखें तो सिंस in this differential equation second order derivative is the highest order derivative which present, so order क्या हो जाएगा बेटा इसका, order of this differential equation will be 2 and for degree we cannot find, why we cannot find degree, because this is again not a polynomial equation in derivative dy by dx, in terms of dy by dx ये पॉलिनोमियल नहीं बना पा रहा, why, because यहाँ पे dy by dx e की पावर में, एक्सपोनेंशियल की पावर में है, तो जब भी ऐसे टर्म आपको दिखाई दें जहां पे dy by dx क्या हो, या तो sin, cos, tan किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल बन रहा हो या किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म के पावर में हो, तो उस कंडीशन में हम ऑर्डर तो फाइंड कर लेंगे बट डिग्री वी कैन नॉट फाइंड, तो इसका भी ऑर्डर तो 2 हो जाएगा बट डिग्री कैन नॉट फाइंड, डिग्री कांट फाइंड। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। पॉज द वीडियो एंड टेक द screenshot. Now let us do some questions from your exercise beta. Okay. So exercise 9.1. So exercise 9.1 करने वाला है। So very first question, determine order and degree if defined of differential equation given in exercise 1 to 10. So the very first question, let us explain something. बेटा अगर कहीं पे y dash होगा, so y dash represent dy by dx. It means it is first order derivative. It is first order derivative. Okay. Y double dash indicate d2y upon dx square. It means second order derivative. Y triple dash is d3y upon dx cube, that is third order derivative. And similarly y4 dash is represent fourth order derivative, that is d4y upon dx पावर 4, है ना। तो इसी तरीके से अगर हमें nth डेरिवेटिव चाहिए तो हम इसको लिखेंगे yn, that is dny upon dxn, and this is called nth order derivative. So this is the notation for the differential equation. So the very first question of this exercise is question number first, d4y upon dx4 plus sin y triple dash equal to 0. Now we need to find the order and degree of this differential equation. So see, this is not a polynomial equation, polynomial differential equation in terms of dy by dx. क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव sin का एंगल बन गया है, so we cannot find it easily. हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज ये एंगल में है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे 4, तो ऑर्डर तो 4 हो जाएगा बट स्टिल वी कैन नॉट फाइंड द डिग्री। ओके, डिग्री इसकी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्यों, बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल नहीं है इन टर्म्स ऑफ dy by dx. ओके, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फाइंड द डिग्री। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा बेसिक अगर ले, सपोज करिए बेटा कि इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो इसकी डिग्री हम इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि इक्वेशन आपको दी है x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स sin x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी डिग्री कैसे फाइंड करोगे आप? क्या ये x में पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x स्क्वायर तो ठीक है, सेकंड ऑर्डर, आप कह देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनाएगा, बट ये जो x है ये साइन के अंदर चला गया, साइन का एंगल बन चुका है ना। x में ही अगर ये पूरा होता तो हम इसके रूट्स फाइंड कर लेते इजीली, बट अब यहाँ पे इसका रूट फाइंड करना टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अगर y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, y फोर डैश, ये अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं तब तो उसकी डिग्री फाइंड की जा सकती है, बट अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ऑर्डर तो फाइंड हो जाएगा बट डिग्री वी कैन नॉट फाइंड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, y dash plus 5y is equal to 0. So we can write it like dy by dx plus 5y equal to 0. So what is the order of this differential equation? Since the higher order derivative term present here is one order derivative, first order derivative, तो order क्या हो जाएगा बेटा इसका? Order will be 1 and degree of the differential equation कैसे फाइंड करेंगे? जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसकी डिग्री देखिए कितनी है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बनेगी। सो डिग्री इज आल्सो 1। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, ds upon dt whole power 4 plus 3s d2s upon dt square, d2s upon dt square is equal to 0. So first see here, the highest order derivative present in this differential equation is second order derivative. So this will be the order. So order क्या हो जाएगा बेटा इसका? Order will be 2. Now degree, since it is a polynomial equation in terms of ds upon dt में polynomial बन रहा है यहाँ पे, so the highest order derivative is d2s upon dt square. इसका जो भी डिग्री होगा वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्या हो जाएगा? डिग्री बनेगा। So degree of this differential equation is 1. Okay. So similarly we can find degree and order of another questions. So question number 4, we are given d2y upon dx square whole square, d2y upon dx square whole square plus cos dy by dx equal to 0. Again for order we look at the highest order derivative present in the differential equation. So the highest order derivative is this, so order will be 2, because here the highest order derivative term present is second order derivative, है ना, तो order तो इसका 2 हो जाएगा, but to find degree we must see if the equation is given as a polynomial in terms of dy by dx or not. तो यहाँ पे अगर इसको देखें आप तो dy by dx एक पॉलिनोमियल इक्वेशन डेवलप नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई कि इसका जो डिग्री होगा बेटा वी कैन नॉट फाइंड। ओके, डिग्री कैन नॉट फाइंड। क्यों फाइंड नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे dy वाला dx वाला जो टर्म है वो cos के एंगल में जा रहा है, सो वी कैन नॉट सेपरेट इट, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx और है ना, तो इसलिए इसका डिग्री तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। रही बात ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 तक हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, now see the question number 11 is the degree of the differential equation. The differential equation is given as d2y upon dx square whole power 3 plus dy by dx whole square and plus sin dy by dx plus 1 is equal to 0. So order and degree हमें फाइंड करनी इसकी। So for order we need to see what is the highest order derivative present in the differential equation. तो बेटा इस differential equation में आप देखिए कि highest order derivative कौन सा यहाँ पे present है। So the highest order derivative present is second order derivative d2y upon dx square. So order will be 2. Okay. Now degree, अब डिग्री के लिए देखिए d2y dy by dx, लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से हम इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर पाएंगे, because here dy by dx is the angle of ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin. dy by dx जो है sin के एंगल में चला गया है, so we cannot separate it, so we cannot find the degree of this differential equation. जब भी dy by dx किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में जाए या फिर किसी एक्सपोनेंशियल टर्म के पावर में जाए तो उस कंडीशन में आप डिग्री फाइंड नहीं कर सकते।
So degree again we cannot find. Okay, degree we cannot find because we cannot separate it in terms of dy by dx. Now question number 12. The order of the differential equation 2x square d2y by dx square minus 3 times dy by dx plus y is equal to 0. So what is the order and what is the degree of this differential equation? So beta, for order again we look the highest order derivative term present in the differential equation. So highest order derivative term जो यहाँ present है वो कौन सा है? d2y upon dx square. It is second order derivative. So second order derivative highest है यहाँ पे, तो order क्या हो जाएगा? Second into. अब डिग्री की जहाँ तक बात करें तो ये this is a polynomial equation. Yes, this is a polynomial equation in terms of dy by dx. So what is the degree of this differential equation? Degree of this differential equation will be 1 because the highest order derivative present in this differential equation is dy by dx d2y by dx square. तो जो भी इसका डिग्री होगा यहाँ पे वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री डेवलप करेगा. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म की डिग्री 1 है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन आप कर लेंगे फिर में. आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा. ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो बचे हुए क्वेश्चन है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आई रीड इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज यू हैव टू डू with your own. Okay, thank you for watching the video.